exercise 8C. Okay, same formula, the formula which we used in the previous exercise. SP is 100 plus profit percent. 100 plus, whenever it is profit percent, you add it. 100 plus profit percent upon 100 into CP. Okay, and the other formula is SP equals 100 minus loss percent upon 100 into CP. Okay, these same formulas we will be using in this exercise also. Same formulas, only the type of sums will change. Okay, and I think last 3 sums are omitted, so we have total 8 sums in this exercise. 1 to 8, 8 sums. Now using this formula, this ये जो SP का formula है, SP is 100 plus profit percent upon 100 into CP. इसका मतलब सिर्फ ये नहीं कि ये फॉर्मूला SP फाइंड करने के लिए ही यूज होगा, ठीक है? This formula can be used to find CP also. We have seen that in the sums, and in the last sum, in fact, we have also seen this formula can be used to find profit percent also. मतलब अगर क्वेश्चन में SP भी दे दिया है, CP भी दे दिया, तो उनकी वैल्यूज पे यहाँ पुट करो, and then you can find profit percent also. Okay? या यहाँ पे लॉस परसेंट होगा माइनस लॉस परसेंट, तो लॉस परसेंट भी मिल सकता है अगर आपको SP और CP पता है. मींस एक ही फॉर्मूला आपको 1, 2 और 3 और 4 लॉस परसेंट, 4 वेरिएबल्स, 4 अननोन वेरिएबल्स को फाइंड करने के लिए यूज कर सकते हैं. ओनली वन फॉर्मूला. ओके, एक्चुअली अलग-अलग फॉर्मूलाज बनते हैं इसके कॉम्बिनेशन से. जैसे फॉर एग्जांपल, इफ आई वांट द फॉर्मूला फॉर CP, मैं क्या करता हूं, इस 100 को हम ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं. ये 100 ऊपर गया, ठीक है. दिस 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट विल कम इन द डिनोमिनेटर. ये ऐसा हो जाएगा 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, ठीक है, इक्वल्स CP. ये ऐसे फॉर्मूला बनता है CP का, ठीक है. ऐसे हम CP का एक और फॉर्मूला बना सकते हैं. 4, 5, 6, 7 फॉर्मूला बन सकते हैं. खाली इनको चेंज किया यहाँ से वहाँ को, ठीक है. पर चेंज करने की जरूरत नहीं है. हमने एक ही फॉर्मूला पढ़ा है, उसी को बार-बार यूज करेंगे, ठीक है. चेंज करने की जरूरत नहीं है. So it saves time and you don't need to learn many formulas. Only 2 formulas will give you all the answers. Okay. If any doubts, you can ask me while solving the sums. So let's start. The first sum, exercise 8C. A stationer means someone who buys something from a stationery. Okay, a stationer buys pens at 5 for rupees 28. 5 for rupees 28 means 28 rupees के 5 पेन्स लिए, ठीक है. तो 5 पेन्स का कॉस्ट क्या है? 5 पेन्स इज फॉर 28 rupees, ठीक है. तो व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ 1 पेन? Okay, wait. A stationer buys 5 pens for rupees 28. A stationer means जो स्टेशनरी का ओनर है, ठीक है. जो स्टेशनरी का ओनर है, उसने कितने में खरीदी है पेन्स? 5 पेन्स 28 रुपीस में खरीदी, ठीक है. जो स्टेशनरी का ओनर है, ठीक है. तो मेरी दुकान है, तो मैंने खरीदी 5 पेन्स 28 रुपीस में. ओके, सो व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ for stationery? CP of 5 pens is 28 rupees. Okay, CP of 5 pens is 28 rupees for stationery. Okay, so what will be the CP of 1 pen? CP of 1 pen will be 28 upon 5. Okay, when you divide this, you will get the answer as 5.6. Okay, मतलब the stationery owner था, उसने एक पेन 5.6 रुपीस में खरीदी, ठीक है. एक पेन 5.6 रुपीस में खरीदी. Now आगे क्या बोला है? And sells them at a profit of 25%. And sells them at a profit of 25%. Profit कितना बनाया उसने?
25% और उसकी कॉस्ट प्राइस क्या थी 5.6. Okay. How much should a customer pay if he buys only 1 pen, 3 pens? ठीक है. अब how much customer pays इसका मतलब जितने में स्टेशनरी ओनर सेल करेगा उतने में कस्टमर बाय करेगा. ठीक है. तो हमें बेसिकली फाइंड क्या करना है सेलिंग प्राइस ऑफ द स्टेशनरी ओनर. एक बार मुझे पता चल गया सेलिंग प्राइस, ध्यान दें सेलिंग प्राइस ऑफ द स्टेशनरी ओनर पता चल गया. ठीक है. तो उसी प्राइस में जो कस्टमर है वो बाय करेगा. ओके. सो ठीक है. स्टेशनरी ओनर ने बाय किया 5.6 में. ओके. 25% प्रॉफिट से. कैन आई फाइंड द सेलिंग प्राइस हियर? Yes, I know the formula for selling price. Selling price is, and there is a profit here, so 100 plus profit percent upon 100 into CP. Okay. Cost of 1 pen is 5.6 and profit percent is 25%. So let's find the selling price of 1 pen. 100 plus 25% upon 100 into CP is 5.6. Okay, so this will become 125 upon 100. And is 5.6 को I can write it as 56 upon 10. Calculation easy हो जाएगा. ठीक है. Let's do the calculations. 24 5 4 जा 25 5 जा 5 1 जा 5 2 जा. ठीक है. 4 1 जा 4 1 जा 4 जा 14 जा 2 1 जा 2 7 जा. So I am getting the selling price of 1 pen as 7 rupees. Write it in statements, it's important. 7 rupees. Selling price of 1 pen is 7 rupees. So how much should a customer pay for 1 pen? 7. The customer will also pay 7 rupees for 1 pen. Okay, so first part का आंसर मिल गया. First part का आंसर customer will pay 7 rupees for 1 pen. First part done. समझ में आ रहा है क्वेश्चन? नहीं समझ में. Second part, how much should the customer pay for 3 pens? 21. Customer pays for 3 pens. For the simple 7 into 3, that is 21 rupees.
customer will pay 21 rupees for 3 pens. Is there a calculation? Sure. 100%. आपको simple question. See how important this formula is. It can be used anywhere. Okay. Next. Question number 2. A fruit seller sells 4 oranges for rupees 3. 4 oranges for rupees 3 मतलब 3 रुपए के 4 ऑरेंजेस बेचे उसने, ठीक है, 3 रुपीस के 4 ऑरेंजेस. ओके, तो एक ऑरेंज का कॉस्ट क्या होगा? सेलिंग प्राइस, ही सेल्स ना, फ्रूट सेलर सेल्स, तो सेलिंग प्राइस ऑफ 1 ऑरेंज 3 रुपए के 4 ऑरेंज की है, ठीक है, तो एक ऑरेंज कितने का हुआ? सेलिंग प्राइस ऑफ 1 ऑरेंज विल बी 3/4. ओके, मैंने आपको बताया था that always it is price upon quantity, ठीक है, price upon quantity होता है हमेशा, ठीक है. तो what will be the answer here? 0.0.75. Those who don't know how to do this calculation, I'll show them. 3/4 कैसे करते हैं? तो ये छोटा नंबर है, ठीक है, तो 0s are 0, then you put a point here, point डालते तो यहाँ पे 0 ऐड हो जाता. ओके, अब 4 7s are 28, 2 will remain, एक 0 आ जाएगा ऑटोमेटिक, पॉइंट के बाद ऑटोमेटिक 0 आता है, and 4 5s are 20. ऐसे कर देते हैं 3/4, तो डिनोमिनेटर को अगर 100 बनाना तो हाँ यस वैसे भी कर सकते हैं. 3/4 तो मल्टीप्लाई बोथ बाय 25, तो ये हो जाता है 75/100 मतलब 0.75, ऐसे भी कर सकते हैं. ओके, ठीक है. सो he sells 1 orange for rupees 0.75, gaining 50%. उसका गेन कितना है? एसपी तो हमें मिल गया that 0.75 है, गेन मतलब प्रॉफिट, करेक्ट. सो प्रॉफिट इज 50%. ओके, okay, so I know the SP of 1 orange, I know the profit percent. Can I find the CP of 1 orange? कॉस्ट प्राइस मिल सकता है मुझे, एसपी पता है, प्रॉफिट परसेंट पता है. फाइंड द सीपी यूजिंग द सेम फार्मूला. एसपी इज इक्वल्स टू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100 इनटू सीपी. Do this. Sir, 1/2 answer 50, 0.50 CP.
Solve it on your own. Solve it on your own. Threes are 75 ones are 75 twos are. Got the answer as 0.5? Yes. Got it? Yes. This is the CP of one orange. Okay. Now what are they asking me to find? Four orange. CP of four oranges. अगर एक orange CP of four orange will be how much? 2 rupees. CP of four orange will be एक orange का price into 4. एक orange का price into 4, that is 0.5 into 4, that is 2 rupees. 0.5 50 पैसे मतलब अच्छा ना. नेक्स्ट आंसर क्या होगा? SP of 1. क्या है क्वेश्चन नेक्स्ट? SP of 1. CP of 1. क्या होगा? Yeah. 0.5 मैं सोचना क्या है. सेकंड क्वेश्चन इज वेरी सिंपल. वापस वही चीज पूछी है. CP of one orange. We have already found the CP of one orange. It is 0.5. Correct? नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपको ऑलरेडी पता है. क्या है? SP of one orange. ये भी हमने ऑलरेडी ढूंढ लिया है. What is the SP of one orange? We already know. It is 0.75. Sum solve करने के process में we almost got all the answers. And the fourth question. Yes. Fourth question का आंसर क्या होगा? Profit made by selling one orange. क्या नाम है आपका? यश. क्या बोला जिसने यार? हाँ? एक ऑरेंज का सेलिंग प्राइस क्या है? एक ऑरेंज का कॉस्ट प्राइस क्या है? तो प्रॉफिट नहीं मिल सकता. कितना? ओरल करो ना. 0.70. Yes, क्या होगा प्रॉफिट ऑफ वन ऑरेंज? Profit of 1 orange. 0.25. Very good. What will be the profit for one orange? 0.25. Correct. Profit of one orange will be 0.1. मैं calculation mistake किया. ठीक है. ऐसे subtract करो. So profit on one orange. क्या होगा? एक ऑरेंज का सेलिंग प्राइस माइनस एक ऑरेंज का कॉस्ट प्राइस. ओके. सो
तो वो होगा 0.75 minus 0.5 0, so 75 minus 50 समझो, so it is 0.25. Profit on one orange. There is a fifth part also for the sum. It says, find the number of oranges need to be bought and sold in order to gain 24 rupees. Can anyone give this answer? 90. Correct. और कोई? How will we find this? Means एक ऑरेंज से उससे 0.25 रुपीस मिलते हैं, करेक्ट? 25 पैसे का फायदा होता है एक ऑरेंज से, ओके? एक ऑरेंज बेचने से। तो कितने ऑरेंज बेचने पड़ेंगे 24 रुपीस का फायदा करने के लिए? 24 रुपीस कमाने के लिए कितने ऑरेंजेस सेल करने पड़ेंगे? क्या करूं? डिवाइड करूं, मल्टीप्लाई करूं, क्या करूं? किसको किससे मल्टीप्लाई करूं? 0.25 आप बोल रहे हो 0.25 को 4 से मल्टीप्लाई करूं? नहीं 24 से, तो मुझे आंसर आ जाएगा 6. Yes, what should I do? फोर कहाँ से आया? आपको समझ गया? मुझे बताया, थोड़ा बाकी लोग को भी पहुंचने दो. हाँ बताओ श्रेय, हंसना नहीं, बैठ के बताओ मुझे कैसे आंसर आएगा. Is anyone online? How will I find this? किसको किससे डिवाइड करूं? क्यों? करेक्ट बोल रहे हो आप, बट क्यों? सही बोल रहे हो आप. सी हियर, इसको करने का एक और तरीका बताता हूं मैं, ठीक है? एक ऑरेंज से कितने पैसे मिलते हैं? 0.25. ओके, कितने ऑरेंजेस सेल करने पड़ेंगे? वी डोंट नो दैट वैल्यू. ओके, लेट्स से दैट वैल्यू इज x. तो कितने ऑरेंजेस सेल करने पड़ेंगे? इनटू x. ये सेल करने के बाद टोटल पैसा कितना आना चाहिए? 24. समझ में आया क्या किया? एक ऑरेंज से 0.25 मिल रहा है, ठीक है? कितने ऑरेंज खरीदूं? ये जो मेरा प्रॉफिट है एक का, उसको कितने से मल्टीप्लाई करूं तब जाके मुझे 24 रुपीस मिलेंगे. समझ रहे हैं? तो अब इजीली ढूंढ सकते हो व्हाट विल बी x अपॉन 0.25. ओके, और अब जब इसको मैं सॉल्व करूंगा तो आई विल शिफ्ट द पॉइंट, ये बन जाएगा 25 और ऊपर ऐड हो जाएगा 100. जब हम नीचे से पॉइंट शिफ्ट करते हैं तो ऊपर हम जीरोस ऐड करते हैं या 10 से मल्टीप्लाई करते हैं. ओके, you can easily do that. 25 ones are 25 fours are, you will get 96. So he needs to sell 96 oranges to make profit of 24 rupees. You have to write this statement here. This was the fifth part of the question.
अंडरस्टूड? समझो, इसका एक और एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल इफ आई सेल, अगर एक मार्कर जब मैं सेल करता हूँ तो मुझे 2 रुपीज मिलते हैं, ठीक है? तो मुझे कितने मार्कर सेल करने पड़ेंगे 80 रुपीज कमाने के लिए, अर्न करने के लिए? 40 मार्कर्स। आपको मतलब ये कैसे मिला? एक मार्कर में 2 रुपीज प्रॉफिट मिलता है मुझे, ठीक है? ऐसे में कितने मार्कर सेल करूं सो दैट मुझे 80 रुपीज का प्रॉफिट मिले? ओके, माइंड में आपने कर दिया कि 40 होगा, बट वो कैसे आया? इस तरीके से आया that this 2 will come down 80 upon 2 and you will get 40 as the answer. Okay, so whenever you have this type of questions, remember this method. Okay, done? Question number 2 done. Let's do question number 3. We are going very slow, ठीक है? 30 मिनट्स हो चुके हैं, 2 ही सम किया हमने, बिकॉज आपको समझ में आया, क्योंकि ये बड़े बड़े सम से लेंथी सम से सब यही समझना बहुत जरूरी है। ओके, इसलिए स्लो कर रहे हैं, अच्छे से समझो, कुछ भी डाउट हो तो पूछो। ओके, the third question says a man sells 12 articles for ₹80. So he sells 12 articles for ₹80. So what will be the a man sells, right? Sells. So selling price of one article, 12 articles उसने 80 रुपीज में सेल किए, ठीक है? तो एक आर्टिकल कितने में सेल करेगा? 80 upon 12, प्राइस अपॉन क्वांटिटी, मैंने आपको बताया हमेशा 80 रुपीज और 12 आर्टिकल्स। ओके, सो फाइंड दिस। 2 6 are 2 40 are 2 3 are 2 20 are। इसको डेसिमल में मत लाओ, कीप इट लाइक दिस ओनली। So the selling price of one article is 20 upon 3. Okay, and gaining 33 1 upon 3%. उसका प्रॉफिट परसेंट क्या है? सी सेलिंग प्राइस तो मुझे मिल गया 20 upon 3 है, and what is the profit percent? It is 33 1 upon 3%. Okay, if I solve this mixed fraction, this will become 100 upon 3%. ये है इसका प्रॉफिट परसेंट। So using this selling price and the profit percent, I can find the cost price. Okay, थोड़ा calculation difficult होगा because fractions है. These are fractions here, so the calculation may get a little complex. सर नीचे 100 प्लस किलो का मल्टीप्लाई होगा। मैं बता, selling price is 20 upon 3, numerator में it is 100 plus this profit percent की जगह पे आएगा 100 upon 3 upon 100 into cost price. Now this 100 is in the denominator. इस denominator वाले 100 को मैं यहाँ पे 20 से मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक है? क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है? यहाँ से मल्टीप्लाई होगा, you will get 20 into 100 upon 3. कुछ कैंसिलेशन मत करो, सिर्फ शिफ्ट किया मैंने, ठीक है? एंड यहाँ पे क्या होगा इन दोनों का? Can I add them directly or I have to take LCM? LCM is important here. I have to take LCM here. Okay, so ये भी 3 से मल्टीप्लाई होगा ऊपर नीचे, so this will become 300. Correct? तो ये क्या होगा? 300 plus 100
upon 3 into CP. Correct? This 3 will get multiplied with 100. 3 into 100 is 300 plus 100 upon 3. Okay? I'll continue here. So this is 20 into 100 upon 3 equals 300 plus 100 is 400 upon 3 CP. Now this 3 will go in the numerator. बराबर और ये जो 400 है ये डिनोमिनेटर में जाएगा बिकॉज मुझे सीपी फाइंड करना है ना मुझे सीपी फाइंड करना है तो सीपी को एक जगह पे रखेंगे I will make CP the subject and I will shift all the numbers on the other side. ठीक है तो CP यही रहेगा ये 3 को ऊपर भेज दिया 400 को नीचे भेज दिया इक्वल CP समझ रहे तो this 3 will cancel 0 0 will also cancel 4 1s are 4 5s are so क्या मिला CP 5 ये CP of one article है correct we always deal with one article only this is the CP of one article is it okay now CP of one article is 5 previous step card Yes, Tanish, what is your doubt? Sir, in the previous one, can't we that in the brackets? Can't we do it like 100 upon 3? This. Yes, sir. Yes, sir. So, what do you mean? This 3 will come here. No, 100 upon 3. The addition. Achha, so you are saying it should be 100 plus 100 upon 3. Like this? No, 100 as a whole number and 100 upon 3. Can't we do it like that? Mixed fraction. Huh. Mixed fraction means the same. Always remember, always remember that mixed fraction is nothing but addition of two numbers. See, when you write the mixed fraction, let's say mixed fraction is 3 upon 5. This 3 upon 5 is nothing but 3 plus 3 upon 5. वही होता है ठीक है इसमें भी यही होगा एलसीएम लेने के लिए 5 into 3 plus 3 और यहाँ मिक्स फ्रैक्शन में भी वही करते हैं 5 into 3 plus 3 so this is yes you are correct that 100 plus 100 upon 3 can be written as 100 upon 3 yes okay decimal में मत करो because sum बहुत difficult हो जाएगा decimal में what will happen because these numbers are not divisible so आएगा 33.33 then you will get here 6.66 so calculation will become very difficult wrong भी आ जाएगा आंसर okay so it is better to keep it in fractions Thank you, sir. so I got the CP as 5 rupees of one article okay now the question is एक article 5 rupees का है find the number of articles bought by the man for 90 rupees तो उसे 90 rupees में कितने articles buy किए होंगे 90 रुपीस में कितने आर्टिकल्स बाय किए होंगे एक आर्टिकल 5 रुपीस का था ठीक है तो 90 रुपीस में कितने आर्टिकल बाय किए होंगे नंबर ऑफ आर्टिकल्स बॉट विल बी 90 upon 5 प्राइस अपॉन क्वांटिटी वही होता है ठीक है सो 90 रुपीस में कितने आर्टिकल्स बाय किए 80 सो आंसर आएगा 80 number of articles bought are 80
Next. Question number 4. Question number 4. The CP of 20 articles is same as the selling price of 16 articles. Find the gain first. See, question number 4, 5 and 6 are alike. तीनों सेम टाइप के सम्स हैं, ठीक है, जिसमें एक को कुछ वेरिएबल लेना है, दूसरे को सॉल्व करना है. तो व्हाट वील डू, वील फर्स्ट सॉल्व द क्वेश्चन नंबर 7 एंड 8. ठीक है, वो थोड़े अलग हैं, उनको सॉल्व कर देंगे. फिर ये जो तीनों सेम टाइप के क्वेश्चन है 4, 5, 6 उसको सॉल्व करते हैं. ठीक है, तो पहले लेट्स सॉल्व 7 एंड 8. क्वेश्चन नंबर 7 एंड 8. Now the seventh question is a little lengthy question. ठीक है, तो अच्छे से ध्यान देना, ध्यान से, कुछ मिस्टेक नहीं होनी चाहिए. See, a shopkeeper bought rice worth rupees 4,500. So total उसने 4,500 rupees का राइस वो लेके आया. ठीक है, shopkeeper. He sold 1/3 of it at a profit of 10%. 1/3 of it. See. Rice sold at 10% profit. कितना राइस सोल्ड किया 10% प्रॉफिट पे? 1/3. ठीक है, तो टोटल राइस कितने का लिया था? 4,500. तो इसका 1/3 क्या होगा? 1/3 ऑफ 4,500. सी टोटल उसके पास 4,500, 4,500 का राइस था, उसमें से 1/3 राइस ही सोल्ड, दैट मींस 1,500 रुपीस का राइस उसने 10% प्रॉफिट पे सेल किया. ठीक है, ओके. Now, if he desires a profit of 12% on the whole, क्या कह रहे हैं कि उसने 1/3 राइस, मतलब जो उसके पास 4,500 के राइस थे, 4,500 का जो राइस था उसके पास, उसमें से 1,500 रुपीस वाले राइस थे, उसको 10% प्रॉफिट पे सेल किया. ठीक है, बाकी जो बचे हैं, बाकी कितना बचा होगा उसके पास? राइस कितना बचा होगा? 3,000 रुपीस का राइस बचा है उसके पास, करेक्ट ना? 4,500 में से 1,500 गया. ठीक है, तो 3,000 रुपीस का राइस बचा है. उस 3,000 उसने क्या कहा है? इफ ही डिजायर्स अ प्रॉफिट ऑफ 12% ऑन द होल, मतलब सारा राइस बेच के उसको टोटल 12% का प्रॉफिट कमाना है. ठीक है, सारा राइस बेच के टोटल 12% का प्रॉफिट कमाना है उसे. ठीक है, सी सबसे पहले तो उसने 10% कमाया इसके ऊपर. ओके, सो प्रॉफिट ऑन 1/3 राइस. 1/3 राइस पे क्या प्रॉफिट होगा? व्हाट विल बी द प्रॉफिट ऑन 1/3 राइस? इसका 10%, 1,500 रुपीस का राइस है, उसने सेल किया तो उसे 10% प्रॉफिट मिला. ठीक है, तो व्हाट विल बी द प्रॉफिट ऑन 1/3 राइस? 10% ऑफ 1,500. कितना रुपया कमाया उसने? 1,500 का राइस बेच के कितना कमाया? What will be the answer here? So 150 रुपीस. ठीक है, 150 का प्रॉफिट हो गया उसका. 150 का प्रॉफिट हो गया. ओके, उसे चाहिए कितना प्रॉफिट? उसे चाहिए 12% प्रॉफिट ऑन द होल. ऑन द होल मतलब 4,500 के ऊपर उसे 12% प्रॉफिट चाहिए. ओके, सो प्रॉफिट ही डिजायर्स, profit he desires is how much? 12% on the whole. On the whole means 4,500. What will be the answer here?
Yes, you will get rupees 540. See, उसके पास जो पूरा राइस था, ठीक है, 4500 का, उसमें से उसने 1/3 बेच दिया, ठीक है, 1/3 बेच दिया और कितना पैसे कमा लिए? 150 रुपीज कमा लिए, ठीक है। टोटल उसे कमाना कितना है? टोटल उसके पास उसको चाहिए 540 रुपीज प्रॉफिट चाहिए, ठीक है। तो कितना प्रॉफिट उसे और कमाना पड़ेगा? 540 माइनस 150, 150 प्रॉफिट ऑलरेडी मिल गया और टोटल चाहिए 540, तो भी और कितना प्रॉफिट कमाना बाकी है, ठीक है। सो प्रॉफिट टू बी अर्न्ड on remaining rice will be 540 minus 150, that is 390 rupees. ओके, और रिमेनिंग राइस मतलब कितना राइस बाकी है उसके पास? 3000. हाउ मच राइस लेफ्ट? 3000 रुपीस का राइस बाकी है उसके पास, ठीक है। सो कितना राइस बाकी है? 3000 रुपीस। CP of remaining rice is 3000 rupees. अभी तक क्वेश्चन समझ में आया? ठीक है, वापस एक बार मैं थोड़ा समरी में एक्सप्लेन करता हूँ क्वेश्चन को कि टोटल 4500 रुपीस का राइस उसने लिया, ठीक है। उसमें से उसे टोटल प्रॉफिट चाहिए था 12% का, मींस उसे 540 रुपीस एज अ प्रॉफिट चाहिए, ठीक है। उसमें से 4500 में से ही सोल्ड 1500 का राइस उसने सेल कर दिया, ठीक है, और कितना प्रॉफिट कमा लिया वहां से? 150 रुपीस, 10% 150 रुपीस, ओके। तो अब कितना प्रॉफिट बाकी है कमाना अभी तक? 540 माइनस 150 दैट इज 390 रुपीस और कमाना है। किसके ऊपर कमाना है? इस 3000 पे, ठीक है। तो इस 3000 वाले राइस को वो कितने में सेल करेगा? कितने में सेल करना पड़ेगा उसे इस राइस को? इस राइस को सेलिंग प्राइस ऑफ रिमेनिंग राइस क्या होगा? ये कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, करेक्ट ना? कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, ओके। सो सीपी प्लस प्रॉफिट दैट इज 3000 रुपीस प्लस वो प्रॉफिट उसके ऊपर ऐड करके इस राइस को बेचेगा 3390 में। ये समझ में आया? बाकी का राइस को कितने में बेचेगा? 3390 में, ओके। एंड देन दे आर आस्किंग मी फाइंड द परसेंटेज प्रॉफिट ऑन द रेस्ट ऑफ द राइस। कितना परसेंट प्रॉफिट मिल रहा है? प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालते हैं? प्रॉफिट अपॉन सीपी इनटू 100 ऐसे निकालते हैं प्रॉफिट परसेंट, ओके। सो 390 अपॉन 3000 इनटू 100 प्रॉफिट परसेंट। So 0 will cancel, here 0 will cancel, you will get the answer is 30%. This is the second part. Copy it. Done? Understood question? Copy it step by step. The next question is almost similar to what we did here.
See, जो C exercise है ना, there is no new formula here. Only the complexity of the sum is increasing. बड़े sums आ रहे हैं, बड़े transactions आ रहे हैं, ठीक है? दो तीन चीजें एक ही साथ एक ही sum में हो रही हैं. The next question is same. It says Mohan bought a certain number of notebooks for rupees 600. ठीक है? तो total 600 rupees के उसने notebooks लाए. कितने लाए वो नहीं पता. ठीक है? He sold 1/4 of them at 5% loss. He sold 1/4 of them at 5% loss. ठीक है? 1/4 मतलब 1/4 books sold at 5% loss are 1/4 of 600. Correct? What will be 1/4 of 600? 4 ones are 415. So you will get 150. 150 rupees की बुक उसने सेल कर दी है और उसमें उसे लॉस हो गया 5% का. ठीक है? तो लॉस की वैल्यू कैसे मिलेगी? कितना लॉस हुआ? 5% लॉस हुआ. ठीक है? किस पे? ये 150 रुपीस के बुक्स पे. तो वो लॉस की वैल्यू क्या होगी? 5% ऑफ 150. 150 रुपीस की चीज आपने 5% लॉस में बेच दी. ठीक है? तो आपका लॉस क्या हुआ? लॉस इज 5% ऑफ 150. So कितने का लॉस हुआ? 7.5 रुपीस का लॉस हुआ. They are asking me at what price should he sell the remaining notebooks so as to gain 10% on the whole. कितना प्रॉफिट चाहिए उसको? 10%. पूरे का होल मतलब 600. पूरे 600 पे उसको 10% प्रॉफिट चाहिए. ठीक है? तो प्रॉफिट ही डिजायर्स is 10% on whole, that is 600. Okay? 60 रुपीस का प्रॉफिट चाहिए उसे. अब मुझे बताओ, उसे 60 रुपीस का प्रॉफिट चाहिए. ठीक है? टोटल 7.5 का तो वो ऑलरेडी लॉस लेके बैठा है. ठीक है? तो 60 रुपीस प्रॉफिट में आने के लिए उसे कितने पैसे कमाने पड़ेंगे? सी, किसी भी आदमी को प्रॉफिट करने के लिए पहले अपना लॉस रिकवर करना पड़ेगा. करेक्ट? तो पहले उसे 7.5 का लॉस रिकवर करना है और प्लस उसे 60 रुपीस प्रॉफिट भी लाना है. ओके? सो टोटल प्रॉफिट he needs to make on the remaining notebooks. करेक्ट? रिमेनिंग नोटबुक, क्योंकि उसने 1/4 ही सेल किया है ना अभी तक. 1/4 सेल किया है तो बाकी नोटबुक्स है ना उसके पास, तो उसमें उसको कितने प्रॉफिट बनाना पड़ेगा? टोटल प्रॉफिट ही नीड्स टू मेक ऑन द रिमेनिंग नोटबुक्स इज 60 plus 7.5, that is 67.5. टोटल 67.5 रुपीस कमाने हैं. ठीक है? और कितने नोटबुक्स अभी तक उसके पास है? CP ऑफ रिमेनिंग नोटबुक्स 600 रुपीस का उसने नोटबुक्स लिए थे. 150 रुपीस के ऑलरेडी बेच दिए. तो कितना बचा है अभी? 450 रुपीस के नोटबुक्स है उसके पास. ओके? he has notebooks worth rupees 450. ठीक है? उसको उसे बेचना है so that he makes a profit of
67.5 रुपीज। तो कितने में बेचना पड़ेगा? कितने में बेचना पड़ेगा? क्या ऐड करूं, क्या करूं, सबट्रैक्ट करूं, क्या करूं? ये कॉस्ट प्राइस है, ठीक है, और ये उसे प्रॉफिट बनाना है, तो सेलिंग प्राइस क्या होगी? CP plus profit. सेलिंग प्राइस ऑफ रिमेनिंग नोटबुक्स। नॉर्मल सोचो ना, नॉर्मल सोचो कि आपके पास 450 रुपीस की नोटबुक्स है और उस पे आपको 67.5 रुपीस प्रॉफिट कमाना है, तो आप उस प्रॉफिट को नोटबुक के प्राइस को इंक्रीज कर दोगे, करेक्ट? 450 रुपीस के नोटबुक को आप कितने में बेचोगे? 450 प्लस उसमें प्रॉफिट ऐड करोगे अपना, और आप अपनी सेलिंग प्राइस बनाओगे 517.5। ये आपकी सेलिंग प्राइस होगी। जब ये आपकी सेलिंग प्राइस होगी तभी उसमें से आपको 450 रुपीस आपकी नोटबुक में मिलेंगे और 67.5 रुपीस आपको अपने प्रॉफिट के मिलेंगे। दिस विल बी द सेलिंग प्राइस ऑफ द नोटबुक्स। अंडरस्टूड? समझ में आया क्वेश्चन? वापस एक बार बताओ, एक शॉर्ट में एक्सप्लेन करता हूं वापस। देखो 600 रुपीस की नोटबुक्स थी उसके पास, ओके, उसमें से दो पार्ट्स में डिवाइड करो 600 को, एक 150 एक 400, ओके। तो इस 450 रुपीस के नोटबुक्स को उसने लॉस में सेल किया 7.5 रुपीस के, ओके, एंड टोटल प्रॉफिट उसे चाहिए 60 रुपीस का। तो जो दूसरा ट्रांजैक्शन वो करेगा ये 450 रुपीस वाले नोटबुक में, उसमें उसे प्रॉफिट कमाना पड़ेगा, ठीक है। तो कितना प्रॉफिट कमाना पड़ेगा? ये 60 रुपीस जो उसे चाहिए और प्लस जो उसने लॉस किया है यहाँ पे 7.5 रुपीस का, तो टोटल उसे इतना प्रॉफिट कमाना पड़ेगा, ओके। कौन से पे? 450 रुपीस के नोटबुक्स पे, ओके। तो 450 रुपीस की जो नोटबुक्स थी प्लस उसमें जो प्रॉफिट ऐड किया, तो उसे इतने में उस नोटबुक्स को सेल करना पड़ेगा। समझ रहे हैं? समझ रहे? करेक्ट। चलो कॉपी हो गया, तो क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 करते हैं, आज कंप्लीट कर लेंगे एक्सरसाइज। डन? कॉपीड? Question number 4. Question number 4 says the cost price of 20 articles is same as the selling price of 16 articles. ठीक है? Cost price of 20 articles is same as selling price of 60 articles. ये क्वेश्चन करने के लिए बेस्ट मेथड है x लेना, कॉस्ट प्राइस को x लेना। सी कैसे करना है पता है? Let the CP of one article, articles है ना? हाँ, let the CP of one article be x. मतलब एक आर्टिकल x रुपीस का है, ओके। तो 20 आर्टिकल्स कितने रुपीस के होंगे? 20x। एक आर्टिकल अगर x रुपीस का है तो 20 आर्टिकल्स 20x के होंगे, ठीक है। So CP of 20 articles 20x, ओके। तो 16 आर्टिकल्स कितने के होंगे? कॉस्ट प्राइस ऑफ 16 आर्टिकल्स क्या होगा? 16x। एक आर्टिकल x रुपीस का है तो 20 आर्टिकल्स 20x के, 16 आर्टिकल 16x के। ओके। अब जो क्वेश्चन में नंबर दिखते हैं आपको 20 आर्टिकल 16 आर्टिकल, सबका पहले कॉस्ट प्राइस लिख दो, ठीक है। नाउ आई विल रीड द कंडीशन वंस अगेन। व्हाट वाज द कंडीशन? द कॉस्ट प्राइस ऑफ 20 आर्टिकल्स इज सेम एज द सेलिंग प्राइस ऑफ 16 आर्टिकल्स। सेलिंग प्राइस ऑफ 16 आर्टिकल्स किससे सेम है? सेलिंग प्राइस ऑफ 60 आर्टिकल्स किससे सेम है? कॉस्ट प्राइस ऑफ 20 आर्टिकल्स, जो कितना है? 20x। तो
तो इसका मतलब सेलिंग प्राइस ऑफ 60 आर्टिकल क्या होगा 20x होगा। वापस सुनो, उन्होंने क्या बोला है, सेलिंग प्राइस ऑफ 16 आर्टिकल इज सेम एज द कॉस्ट प्राइस ऑफ 20 आर्टिकल्स, और कॉस्ट प्राइस ऑफ 20 आर्टिकल्स क्या है 20x, तो वही यहाँ पे कॉपी करूंगा। ओके, नाउ अभी हो गया क्वेश्चन, बस एक स्टेप में आंसर आएगा अभी, ठीक है, इतना समझ में आया अच्छे से। अब मुझे देखो, और यहाँ पे देखो, इन दोनों को कंपेयर करते हैं, लास्ट दोनों को। CP ऑफ 16 आर्टिकल्स, 16 आर्टिकल्स कितने में खरीदे 16 आर्टिकल्स, बट 16 आर्टिकल्स कितने में बेचे 20 रुपीस, 20x में, मतलब प्रॉफिट हुआ है यहाँ पे। ओके, 16 आर्टिकल्स खरीदा 16 रुपीस में और 16 आर्टिकल्स को बेचा 20 रुपीस में। हमें क्या फाइंड करना है, गेन परसेंट। तो पहले तो प्रॉफिट निकाल देते हैं। प्रॉफिट ऑन 16 आर्टिकल्स इक्वल्स टू 20x minus 16x, correct? Profit on 16 articles is 20x minus 16x, that is 4x. So what is the profit percent? Profit upon CP into 100. So profit is 4x. CP is CP कितना था 16 आर्टिकल्स का 16x into 100. आ जाएगा आंसर, इजीली आ जाएगा। 4 1 जा 4 4 जा 4 1 जा 4 25, तो यार से भी 25। ओके, सी एग्जाम में कंफ्यूज नहीं होना है कि क्या सीपी ले क्या, मैं सिंपल तरीका बताता हूँ, ठीक है। जो भी नंबर्स क्वेश्चन में लिखे ना, सबका सीपी फाइंड करो। सबसे पहले तो ये तो सबसे कॉमन स्टेटमेंट होगा, सीपी ऑफ 1 आर्टिकल इज x। क्वेश्चन में नंबर दिखा 20, तो सीपी ऑफ 20 आर्टिकल 20x, सीपी ऑफ 16 आर्टिकल 16x, ठीक है। इसके बाद कंडीशन रीड करेंगे। कंडीशन में क्या था, एसपी ऑफ 16 आर्टिकल इज सेम एज सीपी ऑफ 20 आर्टिकल्स, जो वैल्यू क्या है 20x, तो उसको यहाँ पे कॉपी किया। फिर आप इन दोनों को कंपेयर करोगे, आपको इजीली समझ में आ जाएगा क्या करना है। ओके, सेलिंग प्राइस ऑफ 15 आर्टिकल्स इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 आर्टिकल्स, ठीक है। हमें सेम स्टेप्स फॉलो करना है। फर्स्ट स्टेप क्या होगा, सीपी ऑफ 1 आर्टिकल इज x, ठीक है। फिर दो नंबर्स दिख रहे हैं 15 और 12, ओके, दोनों का सीपी लिखेंगे, दोनों नंबर्स का सीपी। तो व्हाट विल बी द सीपी ऑफ 12 आर्टिकल्स, सीपी ऑफ 12 आर्टिकल्स क्या होगा 12x, CP of 12 article will be 12x. ओके, और दूसरा नंबर क्या है 15, तो CP of 15 आर्टिकल्स क्या होगा 15x। ओके, तो तीनों CP लिख दिया 12x 15x। अब कंडीशन क्या है, SP of 15 articles, SP of 15 articles is equal to what, CP of 12 articles, okay। तो CP of 12 articles क्या है, CP of 12 articles 12, तो यहाँ पे भी 12x आ जाएगा। समझ रहे क्या होगा क्वेश्चन में, मैंने पहले लिखा CP of 12, CP of 15, फिर मैंने कंडीशन पढ़ा। कंडीशन क्या है, SP of 15 articles is equal to CP of 12 articles, that is 12x, तो वो 12x यहाँ पे आ गया, ओके। सो यहाँ पे बोर्ड इज नॉट क्लियर, आई एम रीडिंग आउट ऑल द स्टेटमेंट्स, थोड़ा कुछ अगर अनक्लियर है तो जस्ट बेयर विद इट। CP of 12 articles 12x, CP of 15 articles 15x, CP of 15 SP of 15 articles 12x, ठीक है। अब SP 12 है
15 आर्टिकल्स की बात चल रही है। 15 आर्टिकल्स खरीदे 15 रुपीज में और 15 आर्टिकल्स को बेचा 12 रुपीज में, तो लॉस हुआ है, ठीक है, देयर इज अ लॉस। लॉस इज सीपी माइनस एसपी, दैट इज 15 आर्टिकल्स का सीपी है 15x और 15 आर्टिकल्स का एसपी है 12x, so there is a clear loss of 3x. ओके, लॉस मिल गया। व्हाट इज लॉस परसेंट? लॉस अपॉन सीपी इनटू 100। ओके, लॉस कितना है? 3x। सीपी क्या है? 15x into 100. When you solve this, x will cancel. 3 1s are 3 5s are 5 1s are 5 20s are. You will get loss as 20%. Okay. हो गया? ये कॉपी कर लो जिसका बाकी है। Last sum, question number 6. सिमिलर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 में थोड़ा सा चेंज किया है तरीके से, थोड़ा सा, ठीक है। क्या दिया है? बाय सेलिंग 8 पेन्स श्याम लूजेस इक्वल टू द सीपी ऑफ 2 पेन्स। मतलब सबसे पहले तो मैं करूंगा कि लेट द सीपी ऑफ 1 पेन बी x, ठीक है। एक पेन का सीपी क्या है? x. So CP of 2 pens will be 2x and CP of 8 pens will be 8x. जो नंबर्स है उनका मैंने CP फाइंड कर लिया। अब क्वेश्चन में बोला है कि श्याम लूजेस, मतलब लॉस हुआ है ट्रांजैक्शन में, ये क्वेश्चन में बोल दिया है, करेक्ट, कि ट्रांजैक्शन में देयर इज अ लॉस। सो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर लॉस? लॉस इज SP CP minus SP. Loss is CP minus SP, correct? So 8 pence को जब उसने सेल किया था तो कितना लॉस हुआ था? Read the question. By selling 8 pence, Shyam loses equal to cost price of 2 pence. Okay, cost price of 2 pence क्या है? 2x. ये उसका लॉस था। क्वेश्चन में यही बोला है ना, क्वेश्चन में क्या बोला है कि जब वो 8 पेन्स सेल करता है तो लॉस कितना होता है? CP of 2 pence. ओके, तो यहाँ पे आई एम फाइंडिंग SP of 8, नीचे 8 लिख दो सर, याद रहेगा। दिस इज SP of 8 pence, CP of 8 pence. तो लॉस कितना हो रहा है? 2x. ओके, 8 पेन्स का CP कितना है? 8x. ओके, तो मुझे SP मिल जाएगा 8 पेन्स का। Okay, I'll shift this SP on the left hand side. So SP of 8 pence equals to 8x minus 2x. Okay, that is 6x. आया सबको समझ में?
फर्स्ट टाइम करोगे तो थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा बिकॉज ये अलग टाइप का सम है। ठीक है, अब हमें पूछा क्या है, फाइंड द लॉस परसेंट। एक्चुअली लॉस परसेंट ढूंढना था, करेक्ट। सो लॉस अपॉन सीपी इनटू 100 क्या ये प्रॉपर तो है, सीख देना नंबर, इसकी ढूंढने की जरूरत ही नहीं थी, डायरेक्ट मिल जाता था। ये इसको कट कर दो, ये राइट है जो हमने किया है, बट क्वेश्चन में पूछा ही नहीं है तो हमें शॉर्टकट से आंसर आ जाएगा। आई थॉट उन्होंने क्वेश्चन में सेलिंग प्राइस पूछा था। ओके, जस्ट यहाँ तक क्वेश्चन को करो, यहाँ तक, किधर तक, ये तीन लाइन बस, इसको हटा दो क्योंकि क्वेश्चन लेंथी नहीं है तो व्हाई टू राइट एक्स्ट्रा स्टेप्स, जरूरत नहीं है उसकी। सो लॉस क्या है, लॉस इज 2x, ओके, एंड सीपी ऑफ 8 pence is 8x, सो डायरेक्ट मिल जाएगा लॉस परसेंट। लॉस परसेंट ही ढूंढना है, लॉस परसेंट, लॉस इज 2x सर 6x होगा। अरे s लॉस इज इक्वल टू सीपी माइनस एसपी और s क्वेश्चन में लिखा ना श्याम इज इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस इक्वल है ना, तो 6x। क्या गड़बड़ है, हमें ढूंढना है लॉस परसेंट। आंसर क्या है पीछे, 25% आंसर है ना, तो फिर क्या प्रॉब्लम है सर 2x अपॉन 8x into 100 करेंगे ना तो फिर आंसर 25% नहीं आएगा। 25% क्या आएगा, कुछ नहीं, सही है। लॉस परसेंट क्या होता है, लॉस अपॉन सीपी इनटू 100, सो लॉस इज 2x, सीपी इज 8x इनटू 100, x cancel, 2 1s are 2 4s are 4 1s are 425, so loss percent is 25%. यही आंसर है ना पीछे, wait, we have completed the exercise 8C, last 3 sums are omit.